ہم سب کے مخدوم گرامی حضرت اقدس مفتی شمس الہدیٰ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بیچ موجود ہیں۔ میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے فیوز و برکات کو عام فرمائیں۔ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، عزیز طلباء، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق دی اور ان دین کی بات سننے اور کرنے کی توفیق۔ بڑی بابرکت مجلس ہے، یہاں پر تکمیل قرآن کریم ہوا ہے۔ ماشاءاللہ وہ بچے ابھی حافظ قرآن ہوئے ہیں اور کل پرسوں میں بھی کوئی ہوا تھا اور بھی کئی بچے ابھی ہوئے ہیں، تو ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہے یہ بچے، ان کے والدین، ان کی مائیں اور جن لوگوں نے بھی، ان کے وہ اساتذہ کرام جنہوں نے ان کے ماں باپ کو مارا، ترغیب دلائی، سب کا سب قابل مبارکباد ہے۔ اور بڑی قسمت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے اوپر بڑی رحمت کی، کرم کی نظر کرتا ہے، اس کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول کرتا ہے اور کلام پاک کی خدمت کے لیے قبول کرتا ہے۔ کلام پاک کو اپنا کلام اس کے سینے میں اتارتا ہے۔ قرآن کریم کی برکت ہے کیا؟ اس کے پڑھنے والے لوگ ہیں کون؟ کتنا اونچا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس وقت اکبر بادشاہ گمراہ ہو گیا، ہندوستان میں 800 برس تک مسلمانوں کی حکومت رہی، اکبر بادشاہ گمراہ ہو گیا، کچھ لوگ ایسے مل گئے جنہوں نے اسے مل جل کر گمراہ کر دیا۔ اس کے خلاف جو مرد مجاہد میدان کے اندر آیا ہے، اس کو سدھارنے کے لیے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمہ اللہ اکبر کو سمجھانے کے لیے میدان کے اندر آئے۔ اس نے دین کا نقشہ ہی بدل دیا تھا، سارے دینوں کو ملا کر ایک الگ سے دین بنایا تھا، اس کا نام رکھا تھا دین الہی۔ کہتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین 1000 سال تک چلا ہے اور 1000 کے بعد اب میرا دین چلے گا۔ یہ اس کی گمراہی، اس کی تجدید کی ہے، اسے سدھارا ہے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمہ۔ گمراہی اس نے پھیلائی، آپ نے کام شروع کیا لیکن گمراہی بند نہیں ہوئی، آخرکار اسی کے طور طریقے پر اس کا لڑکا جہانگیر بھی چلا۔ پتہ چلا کوئی مولوی صاحب ہے، کوئی مولوی ہے، ہماری مخالفت کر رہا ہے، دین الہی کی مخالفت کر رہا ہے۔ اکبر اپنے دربار میں سجدہ کرانا شروع کر دیا تھا، جہانگیر بھی سجدہ کرا رہے،
تو اب اس نے کہا کہ کون مولوی صاحب ہے، پکڑ کے لایا جائے انہیں. لایا گیا شیخ احمد سرہندی رحم اللہ کو. آپ نے سجدہ نہیں کیا اس کے دربار میں. آج سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آج سجدہ صرف اللہ کے لیے. وہ ایک انسان ہے، عاجز آدمی ہے، تھوڑی دیر کچھ دنوں نہ کھائے مر جائے گا، پخانہ رک جائے مر جائے گا، پیشاب رک جائے مر جائے گا. تمہارے سامنے سجدہ تو اس ذات کے لیے ہے جو عاجز نہیں ہے، کمزور نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج ہے. ناراض ہوا، قتل کر دیا جائے. اس کا وزیر بہت ہوشیار، وہ حضرت کو جانتا تھا اور ان کا خود مرید تھا، ان کو خود چاہنے والا ماننے والا تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، مولوی صاحب کے چاہنے والے لوگ بہت ہیں، قتل مت کرائیے، ان کو جیل میں ڈال دیں. کہا ٹھیک ہے لے جاؤ جیل میں ڈال. جیل میں ادھر ڈالا گیا. ادھر سے پشاور سے اٹھا معبد خان، پنجاب سے اٹھا خان اعظم، بنگال سے خان خانہ. 3 بڑے بڑے اپنے علاقے کے گورنر، جیسے آج کل صوبے بنے ہوئے ہیں اس طرح کے وہ الگ الگ علاقے تھے، صوبے سمجھو اس زمانے کے. وہ بغاوت پر آ گئے. جہانگیر نے ہمارے شیخ کو قید کر لیا ہے، چھوڑیں گے نہیں. جہانگیر کی بھی فوج آئی، یہ بھی تینوں اپنی فوج لے کر پہنچے. جنگ ہوئی، بادشاہ گرفتار ہوا. جہانگیر گرفتار ہو گیا. جب ان کو پتا چلا، خط لکھ کر ان لوگوں نے بھیجا، آپ کے دشمن کو، حضرت آپ کو مبارک ہو، آپ کے دشمن کو ہم لوگوں نے قید کر لیا ہے، کہیے اسے قتل کر دیا جائے یا کیا کیا جائے. بہت ناراض ہوئے. انہوں نے کہا اسے چھوڑ دیا جائے، اسلامی حکومت کو نقصان نہ پہنچے، اسے سمجھاؤ بجاؤ، بغاوت ختم کرو. بہرحال اسے چھوڑ دیا. اس کے بعد وہ بڑا متاثر ہوا، کیسے عالم ہے، بدلہ لے سکتے تھے، ہم نے ان کی توہین کی، جیل میں کوڑا بھی لگوایا تھا، لیکن انہوں نے معاف کر دیا. آخرکار بلایا، حضرت آئے، اس کو سمجھایا بجایا، پھر وہ نئے سرے سے مسلمان ہو گیا. پکا نیک دیندار مذہبی آدمی بنا. ورنہ تو ہندوستان سے مسلمانوں کی حکومت اسی وقت ختم ہو گئی. ایک شخص مرد کلندر مجدد الفسانی رحمہ اللہ پیدا ہوئے اور انہوں نے محنت کی. نتیجہ یہ ہوا دوبارہ پھر اسلام پھر شان و شوکت کے ساتھ بڑھنے لگا. اور جہانگیر کا بیٹا شاہجہاں اور شاہجہاں کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ، اتنی بڑی حکومت چلانے والے. افغانستان، پاکستان، انڈیا ہمارا، بنگلہ دیش، برما، تبت، چین کے بہت سارے علاقے، اکیلے وہ اللہ کا بندہ 55 سال تک حکومت کیا ہے. اتنی بڑی حکومت. اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ، اور ان کا حال کیا، وہ بھی بہت بڑے عالم اپنے زمانے کے، بہت بڑے عالم. 8000 حدیثیں یاد تھی انہیں. اور امام اعظم رحمہ اللہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کے مسائل، چھوٹے چھوٹے جزیات بہت ساری کتابوں میں پھیلے ہوئے تھے. ان سب کو انہوں نے جمع کرایا، بڑے بڑے علماء کو اکٹھا کرا کے، جس کا نام فتاوی ہندیہ ہے عربی میں، اردو میں فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے. یہ بہت بڑی خدمت ان کی. حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے. ان کے حافظ ہونے کا واقعہ یہ ہوا، ان کا پوتا، ان کا لڑکا
हाफिज हुआ तो बादशाह को खुशखबरी भिजवाई, हजरत बादशाह सलामत मुबारक हो आपको, आपका पोता हाफिज कुरान बन गया है। बादशाह, वो भी तो बादशाह था शाहजहां, पढ़ा लिखा था, शेख अहमद सरंदी के घराने से ताल्लुकात, उसने उधर से जवाब दिया, बेटे तुम्हें मुबारक हो, कयामत के दिन में तुम्हारी हौसला अफजाई होगी, बढ़ाई होगी, तुम्हारे सर पर ताज सजेगा, तुम्हारे सर पर, तुम्हारी बीवी के सर पर मेरा क्या हो। उन्होंने उसी वक्त तय कर लिया, बाप को खुश करूंगा, याद करना शुरू किया। 6 महीने के बाद उन्होंने खबर भिजवाई, अब्बा हुजूर आपको भी मुबारक हो, आपका भी बेटा हाफिज कुरान। 6 महीना में औरंगजेब आलमगीर रहमुल्लाह ने कुरान याद किया। बादशाह और इतने बड़े मुल्क का बादशाह सादगी के साथ जिंदगी गुजारता था। जुमे की नमाज जामा मस्जिद दिल्ली में खुद पढ़ा था। वो खुद आलिम, मदरसे का पढ़ा हुआ, उलमाए किराम की सोहबत में रहा हुआ, जिसकी वजह से मुल्क बढ़ा और हिंदुस्तान में दोबारा मुसलमानों की हुकूमत मजबूत हुई। लिहाजा अब हाँ, जो बात मैं कहना चाह रहा था, शेख अहमद मुज्जद्दिद अल-फ़सानी रहमुल्लाह, आपने समझा होगा कितनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े आदमी। उनके शेख ख्वाजा बाकी बिल्ला उनका नाम था, रूस के इलाके के रहने वाले थे, उधर से आए थे आप हिंदुस्तान में। उनका हाल ये हुआ कि एक बार जो बुजुर्गों की पहली कैफियत होती है अल्लाह वालों की, जिनका खुसूसी लगाव अल्लाह से होता है और यूं महसूस होता है अल्लाह के दरबार में हम 24 घंटा हाजिर हैं, वो कैफियत दिल से निकल गई, खत्म हो गई। अल्लाह की मोहब्बत जाती रही, बहुत रोने लगे, बहुत रोया कि या अल्लाह ये क्या माजरा हो गया, दिल की कैफियत खत्म हो गई। आप में देखा कोई कहने वाला कह रहा है जाओ किसी मदरसे में जहाँ कुरान पढ़ने वाले बच्चे हों, उनसे जाकर दुआ कराओ, तुम्हारी कैफियत दोबारा लौट आएगी। उन्होंने जाकर दुआ कराई, दोबारा वो कैफियत लौटी। अब समझिए इन बच्चों का जो मदरसों के अंदर पढ़ा करते हैं कितना ऊंचा मकाम है अल्लाह के दरबार में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला 1000 रहमत की निगाह करता है तब किसी को चुनकर एक मदरसे में भेजता है, अपने दीन की हिफाजत के लिए, अपने कलाम की हिफाजत के लिए, वारिसे नबी, वारिसे अंबिया बनाने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब उस विरासत को बढ़ाना है उलमाए किराम को, जाहिर है उस विरासत को हुफ़ाज़े किराम बढ़ा रहे हैं, हिफ्ज़ करा के, कुरान याद करा के। उलमाए किराम हमारे कारी हजरात आगे बढ़ा रहे हैं, कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ाकर। उलमाए किराम उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, कुरान और हदीस का सही मतलब समझाकर। अगर ये मदरसे न हो, दीन खत्म हो जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। किसी भी चीज को बाकी रखने के लिए जरूरी है तो उसका इल्म पहले होना चाहिए। भाई डॉक्टरी की पढ़ाई बंद कर दो, डॉक्टर खत्म। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म कर दो, इंजीनियर खत्म। वकालत की पढ़ाई खत्म कर दो, वकील खत्म। इस्लामी कानून की पढ़ाई, इस्लाम की हिफाजत की पढ़ाई, इस्लाम की बका की पढ़ाई खत्म कर दो, इस्लाम खत्म। आसानी के साथ, मोटी बात है, कोई ज्यादा समझने की बात नहीं। मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमुल्लाह, जो हम सबके उस्ताद थे, दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस, हम
उन्हों के दौर में तिरमिज़ी शरीफ पढ़ाया करते थे। हजरत फरमाते हैं उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह, कजाकिस्तान वगैरह का जो इलाका है, रसिया से जो छोटी रियासतें निकली हैं, इन पर रसिया ने कब्जा किया था। जब ये रियासतें अलग हुई तो वहाँ के बादशाहों ने एक कॉन्फ्रेंस कराई कि हमारे इलाके में इतने बड़े बड़े मदरसे चलते थे, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा बुखारा के अंदर चलता था, ताजिकिस्तान के अंदर। वो सारे मदरसे खत्म हो गए। इमाम बुखारी हमारे यहाँ के रहने वाले थे, लिहाजा इमाम बुखारी के नाम पर एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। रूस आया था, कम्युनिज्म फैलाया था, रूस चला गया, कम्युनिस्ट खत्म, कम्युनिस्टों की हुकूमत खत्म। यहाँ तो आबादी 99% मुसलमानों की है, लिहाजा एक कॉन्फ्रेंस कराई जाए इमाम बुखारी रहमुल्लाह के नाम पर, दोबारा वो पुरानी यादें ताज़ा हो और फिर लोग मिलजुल कर दीन इस्लाम की तरफ आए, दीनी तालीम हासिल करें, हाफिज बने, कारी बने, आलिम बने, मुफ्ती बने, फिर जो मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है इन सबको आबाद किया जाए। लिहाजा उन्होंने कॉन्फ्रेंस कराई, पूरी दुनिया से चुने चुने उलमाए किराम गए। दारुल देवबंद से मुफ्ती सईद अहमद साहब पालपुरी रहमुल्लाह भी गए। जब वहां पहुंचे हैं, हजरत बताते हैं 70 साल रसिया इन इलाकों के अंदर था। इन इलाकों के अंदर रूस की हुकूमत 70 साल रही, मुसलमानों को की हुकूमत खत्म करके 70 साल था। 70 साल में हजरत फरमाते हैं कि मुसलमानों को ऐसा कर दिया, इतना को जानते थे कि हाँ मुसलमान हैं, लेकिन किसी से सलाम करो जवाब नहीं है, जवाब नहीं मालूम है, जवाब कैसे दिया जाए। अजान दो, सारे इकट्ठा हो गए, देखने लगे ये हो क्या है। नमाज पढ़ने लगे ये लोग, इसी जगह पर इकट्ठा होकर नमाज पढ़ रहे, किनारे आकर इतना समझ रहे कोई इबादत हो रही है, हाथ बांध कर खड़ा होकर देख रहे ये हो क्या रहा है। कुछ अच्छा काम हो रहा है लेकिन हो क्या रहा है कोई पता नहीं। 70 साल में 70 साल रसिया की हुकूमत उन मुल्कों के अंदर आई है, सारा खत्म। हमारे नाजिम साहब हजरत मौलाना अबरार अहमद साहब दामद बरकातुल्लाह आलिया, इनके साहबजादे से कुछ दिन पहले बात हो रही थी, वहां पर डॉक्टर ही पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अजीब हाल है यहाँ का, दाढ़ी रखो, दाढ़ी छीलने को बोल रहे हैं, दाढ़ी रख के क्या फायदा। मस्जिदें वीरान है, यहाँ तक कि जुमा की छुट्टी नहीं दे रहे। 99% मुसलमानों की आबादी। मुसलमान कितने हैं? 99%। आज भी आजाद हुए 35 साल हो गए, लेकिन रसिया की हालत जू की तू है। 70 साल के लिए रसिया उन मुल्कों के अंदर आया, अपना कम्युनिज्म फैला के चला गया और इस तरह दहरिया बना गया, नाम के मुसलमान है, कोई काम मुसलमानी नहीं, इल्ला माशाल्लाह कहीं एक कोई मुसलमान सही तौर पर मिल जाए। मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है, मदरसों में कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई ना हाफिज मिलेगा, ना कारी, ना मौलाना, ना मुफ्ती। हजार कहीं लाखों में एक कोई मिल गया, लेकिन इससे काम थोड़ी बनता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 250 बरस हो गए मुसलमान हिंदुस्तान से मुसलमानों की हुकूमत खत्म हुए। 250 बरस 1757 में प्लासी की जंग में नवाब सिराजुद्दौला शहीद हुआ है, उसकी हुकूमत हारी है, उसी वक्त से जवाल आना शुरू हुआ। आज देखा जाए 250 बरस से ज्यादा का टाइम हो गया, और नहीं कुछ तो 175 साल तो बहादुर शाह जफर को खत्म हुए हो गया। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, चूंकि मुस्लिम हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है जगह जगह हाफिज कुरान तैयार करें, आलिम तैयार करें, कारी तैयार करें, दीन इस्लाम की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी होती है। पढ़ा पढ़ा कर जगह जगह भेजें लोगों को, ताकि लोगों को दीन सिखाएं, दीन बाकी रहे। मुस्लिम हुकूमतें खत्म, रसिया के जो 7 मुल्क थे आजाद हुए। 70 साल के बाद जैसे ही कम्युनिस्टों की हुकूमत आई थी, रसिया में रूस की हुकूमत है, वो उन मुस्लिम मुल्कों में रूस की हुकूमत आई, उन्होंने हथियार डाल दिया,
हमारे मुसलमानों की हुकूमत तो ख़त्म हो गई, अभी यहाँ पर इस्लाम जिंदा कैसे रहे, नहीं रह पाएगा। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, अल्लाह का शुक्र है, वो हथियार नहीं डाले। उन्होंने कहा जिस्म पर हमारी हुकूमत जो भी चाहे करना करे, दिल को हम इंशाअल्लाह गुलाम नहीं बनने देंगे। लिहाजा उन्होंने ये तय किया हमारी हुकूमतें खत्म, नवाब खत्म, बादशाह खत्म, जमींदारी खत्म, जागीरी खत्म, सब खत्म हो गई। लेकिन हम 2 रुपया 4 रुपया करके चंदा लेंगे, उन चंदों से मदरसों को आबाद करेंगे, हाफिज भी बनाएंगे, कारी भी बनाएंगे, मौलाना भी बनाएंगे, मुफ्ती भी बनाएंगे, और जगह जगह इन बच्चों को भेजेंगे, आवाम के अंदर जाकर दीन की इशाअत करे, दीन समझाए, ताकि दीन इस्लाम बाकी रहे। अल्लाह का शुक्र है 250 बरस हुकूमत मान लो या 250 मानो, जितना भी मानना मान लो, बादशाही को डगमगाने लगे उसी वक्त से, 1757 के बाद ही से अंग्रेज भी रहा, उसके बाद फिर अभी भी गैर मुस्लिम हुकूमत, उसके बावजूद भी अल्लाह का शुक्र है हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप दादा ने, हमारे उलमाए किराम बुजुर्गान दीन ने हिम्मत नहीं हारी और वो कुर्बानी दिया है कि अल्लाह की पनाह कोई सोच नहीं सकता। कई टाइम फाके हुए, सही पहनने का नहीं, सही खाने का नहीं, लेकिन दिल में एक जज्बा था, हम इस्लाम नहीं मिटने देंगे हिंदुस्तान से। अगर वो लोग भी आजादी की जिंदगी गुजार लिए होते, उसी तरह से हिम्मत हार दिए होते, छोड़ दिए होते, जाओ तो बादशाहत खत्म हो गई, अब हमारे बस का नहीं, अब तो इस्लाम का अल्लाह हाफिज है, तो नतीजा ये होता हमारा भी वही हाल हो गया होता जो आज रसिया गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे बुजुर्गों ने हिम्मतें नहीं हारी और जगह जगह मदारिस कायम किए, और उसके लिए उन्होंने अवाम के पास जाकर चंदा किया कि हम दीन की इशाअत के लिए, दीन की तबलीग के लिए, दीन को बचाने के लिए हम हाफिज भी तैयार करेंगे, आलिम भी तैयार करेंगे, कारी भी, मुफ्ती भी, आप हमारा इसमें ताउन कीजिए। उन्होंने ताउन किया जिससे जो हो सका। बल्कि बाद लोग तो हिम्मत हार गए थे कि ये क्या होने वाला है, आवाम से कहीं कुछ हो पाएगा, लेकिन देखा लोगों ने, इखलास की बरकत थी, वो इखलास की बरकत कि आज पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ हुफ़ाज़ किराम, और उसमें सबसे ज्यादा आज हिंदुस्तान में 250 बरस हो गए इस्लामी हुकूमत खत्म हुए, लेकिन सबसे ज्यादा हाफिज हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा कारी हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा आलिम हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा मुफ्ती हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा मस्जिदें हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा मदरसे हिंदुस्तान में। और हैरत की बात होगी, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा दारुल देवबंद हिंदुस्तान में। कोई सोच सकता है? आपने देखा होगा अफगान का वजीर खारजा, भाई बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा मर्तबा है, लेकिन क्या इखलास थी हमारे बुजुर्गों की कि वजीर खारजा जो बन जाए, भाई वजीर आजम बन जाए, वजीर खारजा, वजीर तालीम, बहुत सारे शोबे हैं, वजीर खारजा बहुत बड़ा होता होता। वो आया तो यहाँ की हुकूमत से दरखास्त किया, कुछ और हमें चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन दारुल देवबंद का दीदार चाहिए, और मैं चाहता हूँ बैठ के थोड़ी देर पढ़ लूं, वहां से इजाजत हदीस ले लूं, ताकि मेरे लिए मेरे नाम के आगे भी कासमी लिखने लगे कि मैं भी अमीर खान मुत्तकी से अब अमीर खान मुत्तकी कासमी बन जाऊं। ये अल्लाह ने इजाजत दिया है, ये हमारे बुजुर्गों की देन है, इखलास है, बरकत है। आज भी उन्हीं की दुआओं का असर है कि ये बच्चे खुद थोड़ी आए हैं, पता नहीं हजारों आंसू पे हजारों लोगों ने रोया है, हजारों लोगों के, तब जाकर इनके माँ बाप के दिल में, रिश्तेदारों के दिल में एक तमन्ना उठी है कि मेरा लड़का हाफिज कुरान बनेगा, आलिम बनेगा। नहीं कुछ हाफिज कुरान बनाए, उलमाए देवबंद की तहरीक है, हर घर में भाइयों में एक न एक हो मदरसा का पढ़ा, भाइयों में 4 भाई एक हाफिज हो, कारी हो, आलिम हो, ताकि घर का निजाम संभाले। हर भाई हर घर में एक हो, कोई अगर सबको लगा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है
और ये मत समझिएगा कि खाना पीना इतना तो है, जाहिरी असबाब दुनिया देखती है, हम डॉक्टर बनाएंगे मेरा लड़का महीने का इतना कमाएगा, इंजीनियर बनाएंगे मेरा लड़का महीने का इतना कमाएगा, वकील बनाएंगे मेरा लड़का इतना, मास्टर बन जाएगा डिग्री हासिल करके फलां नौकरी इतना कमाएगा। लेकिन कुर्बान जाइए, मदरसों में जो भेजते हैं जो लोग अपने बच्चों को, सामने आगे का कोई मुस्तकबिल दुनिया के लिहाज से कुछ भी नहीं होता, बस एक ख्वाहिश होती है मेरा लड़का क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ कमाएगा, कुछ नहीं। आगे का एक मुस्तकबिल होता है मेरा लड़का दीन पढ़ेगा, दीन फैलाएगा। बहुत बड़ी बात है, हिंदुस्तान जैसी जमीन पर आज भी जहां भी मदरसा खोल दीजिए, यहाँ के लोगों को दिलों में अल्लाह ने दर्द रखा है, भेजते कम बात नहीं है। तो दुनिया में अल्लाह ने इजाज़ दिया है, दुनिया में भी एक बहुत बड़ी आबादी वो है जो इखलास के साथ मोहब्बत करती है। भले ही हम हाफिज नहीं बन पाए, लेकिन या अल्लाह हम इनसे मोहब्बत करते हैं, हम कारी नहीं बन पाए, या अल्लाह हम इनसे मोहब्बत करते हैं। बड़ी तादाद है, कुछ लोग हैं ऐसे तो तनकीद करने वाले, लेकिन बड़ी तादाद में वो लोग भी हैं जो मोहब्बत भी करते हैं, और आपके लिए चाहते हैं क्या उन्हें खिला दे, क्या पहना दे, क्या करे। हमारे बुजुर्गों ने कहा यार बंदा दो, बंदा नहीं तो कम से कम चंदा दो, कुछ तो करो ताकि किसी तरह से भी तुम्हारा तो ऐसा न हो कि आप बिल्कुल कम्युनिस्ट दहरिया की तरह से एक मिजाज बना ले अलग थलग रहने का। नहीं, किसी तरह से भी इन मदरसों के साथ, इन बच्चों के साथ, असातिज़ा के साथ, इन दाढ़ी टोपी वालों के साथ आपकी हमदर्दी रहे, मोहब्बत रहे। काबिल सद एहतराम है ये बच्चे और जो भी पढ़ रहे हैं और इनके वालिदैन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह दुनिया में भी इन्हें नवाजेगा, और मरने के बाद तो जो देगा, आंखें सोच नहीं सकती है, आंखें देख नहीं सकती है, दिल सोच नहीं सकती। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस जमाने के अंदर हाफिज बन जाए, हर एक को चाहिए अपने एक बच्चे को। क्या टाइम लगता है, किसी का 2 साल 3 साल, तेज बच्चा है 3 साल में हो जाता है, वो 3 साल रह के इस काबिल बन जाता है कम से कम मोटे मोटे मसाइल, और कहीं भी जाकर जहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी बैठने वाला नहीं, वो 3 साल 4 साल रह के वहाँ जाकर बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बात रख रहा है, लोगों के साथ सही इस्लाम पेश कर रहा है। उसके समझाने बुझाने से आज हमारी मस्जिदें आबाद हैं, मदरसे आबाद हैं, और अल्लाह का शुक्र है टाइम ज़्यादा हो गया है। आप हजरात ने टाइम निकाला, हमारे मेहमान इकराम भी, जैसे बच्चे काबिल मुबारकबाद है, हमारे असातिज़ा नाज़िम साहब काबिल मुबारकबाद है, हमारे मेहमान इकराम भी काबिल मुबारकबाद, और सबसे ज़्यादा काबिल मुबारकबाद इन बच्चों के वालिदैन हैं, माँ बाप हैं, कि इनके लिए तो इतना हो गया कि जो मिलना है अल्लाह का शुक्र है। और इन्होंने कीमती बच्चा ये दिल में सोचा ही नहीं कि कहाँ खाएगा, कहाँ पिएगा और क्या पहनेगा, क्योंकि आगे हमारी तनख्वाह कोई बहुत ज़्यादा थोड़ी होती है, लेकिन कुछ भी हो मेरा लड़का अभी अल्लाह का शुक्र है। बहुत बड़ी बात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर मुसलमान के अंदर और सबके दिल के अंदर ये जज्बा पैदा करे कि हर एक कम से कम अपने एक लड़के को हाफिज़ कुरान पढ़ा लीजिए, आगे पढ़ाना है पढ़ाइए, वरना आप दुनियावी तालीम देना चाहे दुनियावी तालीम दे दीजिए, कोई बात नहीं है, आलिम बन जाए और अच्छी बात है, लेकिन इतना तो जरूर हो हर आदमी कोशिश करे एक लड़के को बनाएंगे। वरना तो अगर बंद करना शुरू कर दिया तो इस्लाम की वहाँ भी वही उसी तरह मिलेगा जैसा कि रसिया से आज़ाद हुए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला